Good morning. I am Anil Aggarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, number of queries are being put on the channel or elsewhere. Sir, I have committed this mistake, I have committed that mistake, I have used this ink, I have used that ink, I have uploaded that undertaking, I have used this type of photograph. What will happen to my application? Now, one thing is very clear, that if you do any mistake, you are at the mercy of checking officials. Now, the checking officials have two actions. One, either to accept your application or not to accept your application. Now, what he or she will do, nobody can predict. The checking official may allow you to appear, checking official may decline your application. Because IBPS is very clear in his or their notification that the application must be as per the terms and condition of notification. And if you don't obey any of the term and condition of the notification, your application is subject to rejection. Some people are quoting, said, my friend has committed the same mistake last year, he is already working. Yes, he may be. His checking official might have condoned the action, but it does not guarantee that your checking official will condone your action. So this is your choice, whether to rectify the mistake or to live with mistake. No third person can guide you what is to be done. If you ask me, sir, what is your opinion? My opinion will not matter in this, because I may say nothing will happen and your application may be rejected. Or I will say your application will be rejected, it may not be rejected. So decision has to be taken by the concerned officials. And the concerned officials are IBPS officials or bank officials, where you are going to join. But whenever you will ask them what is to be done, they will say fill the application as per guidelines, implying that if you have not filled the application correctly, your application may be rejected, may not be rejected. And the rejection can happen at any stage, maybe at the time when you are appearing in the exam, or you might have appeared the exam, they may not allow you to join, or any other stage. So it is your choice whether to live with error or to rectify the error. For rectification of error, they have suggested a method. A method is the candidate has to fill new application, the candidate has to pay the fee, and the subsequent application will be treated as valid application. So if you want to live with error, it is your choice. If you want to rectify your error, it is your choice. No third person advice will be binding on IBPS or bank. This is you versus IBPS and bank. Decision has to be yours. Now you should focus on study. For study, I have given you 3 deadly weapons. One is good quality mock test. Link of this mock test is available in description and comment column. Click the link, register your information and take annual plan. Second is good quality current affairs. Link I have given in description. Click the link, you will land up on an app. Download the app, apply coupon code AA03 and you will have 10% discount. Third is banking, financial, economic awareness videos. Watch these videos and be knowledgeable. And how to maintain good health. I have given a playlist of these videos. Watch these videos and stay healthy. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. काफ़ी लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर मुझसे ये गलती हो गई एप्लीकेशन भरते हुए, मैंने एक दूसरी यूज़ कर ली, मैंने डिक्लेरेशन में कुछ गलती कर दी, मैंने फ़ोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड की नहीं लगाई. इस तरह की कई गलतियां वो कहते हैं कि हमने कर दी, और फिर ये पूछते हैं कि सर क्या इसका प्रभाव होगा. अब ये जो प्रश्न है, इसका जो आंसर है सिर्फ IBPS के पास है.
या उस बैंक के पास है जहां आपने अल्टीमेटली सिलेक्शन के बाद ज्वाइन करना। जब आप अपनी एप्लीकेशन में कोई गलती करते हैं तो उसके दो ही एक्शन होते हैं, या तो वो गलती कंडोन कर दी जाएगी या वो गलती को मानते हुए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब ये प्रेरोगेटिव है चेकिंग ऑफिशियल का, वो इस तरह की गलती को माफ करता है या माफ नहीं करता है। कई लोग कहते हैं सर ऐसा है, मेरे दोस्त ने पिछले साल ये गलती की थी और वो उसको उन्होंने अलाउ कर दिया, अब वो नौकरी ज्वाइन कर रहा है। क्या किसी को ज्वाइन करा दिया एक प्रेसिडेंस बनेगा आपकी ज्वाइनिंग का? आंसर है नहीं। किस चेकिंग ऑफिशियल ने किस एप्लीकेशन पर क्या डिसीजन लिया, ये उस डिसीजन पे डिपेंड करता है। पर यदि आपकी एप्लीकेशन पे आपका चेकिंग ऑफिशियल क्या डिसीजन लेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि यदि आपकी एप्लीकेशन में कोई भी गलती है या कमी पाई जाती है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का अधिकार IBPS और बैंक के पास है। तो अब जब आप गलती करते हैं तो क्या होता है कि आप एक सस्पेंस की दुनिया में जी रहे हैं। आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। हो सकता है पहली स्टेज पे एक्सेप्ट हो जाए, आपको एग्ज़ाम देने दिया जाए, आप एग्ज़ाम पास कर ले, मगर जब आप ज्वाइन करने जाएं आपको ज्वाइन ना करने दिया जाए। तो ये क्या होगा कहना इस स्टेज पे मुश्किल है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन सावधानी से भरें और ठीक भरें। अब मान लीजिए गलती हो गई है और मुझे पता लग गया मुझसे गलती हो गई है, तो क्या मैं इसको सुधार सकता हूँ? क्या कोई तरीका है जिससे ये सुधर सके? ये IBPS ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन में प्रावधान किया हुआ है। आप नई एप्लीकेशन भर सकते हैं, उसमें आप फीस पे करेंगे, जो आपकी सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन है वो उसमें एक्सेप्ट होती है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने गलती के साथ ही जीना है या गलती को सुधार लेना है टाइम रहते हुए। गलती के साथ जीने का मतलब है कि आप एक सस्पेंस की स्टेज में रहेंगे कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पर अगर आप गलती रेक्टिफाई कर लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं। तो पढ़ने पे ध्यान लगाए रखिए। उसके लिए 3 डेडली वेपन मैंने आपको दिए हैं, इनका इस्तेमाल करिए। पहला है अच्छा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट कॉलम में दिया है। इस लिंक को क्लिक करिए, क्लिक करके रजिस्टर करिए, रजिस्टर करके प्लान को, एनुअल प्लान सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको इस्तेमाल करना शुरू करिए। दूसरा है अच्छा सोर्स ऑफ करंट अफेयर। उसका लिंक भी मैंने आपको दिया है, उसको आप क्लिक करेंगे, उसमें आप एक ऐप पे पहुंचते हैं, उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। ऐप को डाउनलोड करके वहां पर आप कूपन कोड, एनुअल प्लान ले लीजिए 2021 का और कूपन कोड AA03 का, और आपको एनुअल प्लान मिल जाएगा, वहां से पढ़ना शुरू करिए। तीसरी चीज़ है बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक अवेयरनेस। इसकी बहुत अच्छी वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने आपको दी है, 10 से 15 वीडियो देखिए। तो ये तीनों अलग अलग सोर्स हैं, इसको आपने मिक्सअप नहीं करना। मॉक टेस्ट का लिंक अलग है, उस पर कोई कूपन कोड नहीं है, उस लिंक से आपने रजिस्टर करना है, एनुअल प्लान लेना है। दूसरा है करंट अफेयर, वो अलग सोर्स है। और तीसरा है बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, वो तीसरा सोर्स है। अच्छी सेहत मेंटेन करने के लिए मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दी है, उसमें वीडियोस दी हैं, उन वीडियोस को देखिए और उन चीज़ों को अपने जीवन में डालिए और हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।